Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today RBI took a very difficult decision of reversing the interest rate cycle. And this has happened after many years now. In India, we were witnessing only fall in interest rates. And there were noises that interest rates may go up. But RBI kept the interest rate unchanged in last their regular meeting of NPC that was held in April. And the next meeting was scheduled in June. But the circumstances in April led to a situation that RBI has to interfere in between, and they called a off-cycle meeting. This off-cycle word is important. This can be a question. So this meeting is called off-cycle meeting because cycle is every 2 months. And the date of meeting is 2nd and 4th May 2022. And why this meeting is called, RBI says it is on account of inflation growth dynamics being changed. And what are the factors for that? Now the RBI has observed inflation rising alarmingly and spreading fast. That means on inflation front, the rise is abnormal. It is 3 to 4 decade high. That means 30 to 40 years high. Global crude to remain at $100 per barrel above. Edible oil shortage is being observed. So all these things has led to RBI to take some steps immediately so that situation does not deteriorate further. So one traditional way of curbing the inflation is to raise the interest rates. So RBI decided to increase repo rate by 0.40%, and now new repo rate is 4.40%. So SDF rate is automatically changed to 4.15%. MSF and bank rate is 4.65%. So these will have ultimate implication on interest rates charged by bank on home loan, car loan and other loans. And that is the reason that creates panic in the stock market. Whenever interest rates rises, the direct implication is that the cost of companies on interest payment will go up. And the moment this goes up, naturally their profitability will fall, and that's why investors comes into panic because they were in comfortable zone that in India interest rates will not rise. And suddenly RBI has signaled that we may have to rise the interest rates, and that's why there was a sudden knee-jerk reaction in stock market. This is your question, why stock market reacted. Second factor of interest rates is whenever interest rates rises, it affects the bond market. Bond market prices goes down because they react in a inverse manner. जस्ट अ मिनट. हाँ बोल दो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में. हाँ बोल दो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में. अंकल जी कह रहे हैं आ रहे हैं. हेलो दीदी, अंकल जी कह रहे हैं अभी आ रहे हैं. So the interest rate scenario is undergoing a change. Not only it will hit the industries, it will also hit on treasury profits of bank, and that is the cause of worry. And another step that is taken by RBI is withdrawal of liquidity. Now CRR is increased to 4.5% from 4%, increase of 0.5%. So the 0.5% bank funds will be blocked with RBI without any interest, further hitting the profitability of the bank. So that's why there is a negative impact, but
to handle a bigger problem, you have to pass through a smaller problem. So this is a problem, and now RBI has recognized it, and they are now trying to tackle it head on. And we hope that this problem will be sorted out, but they have hinted that inflation will rise further in this country. On this channel, we are having many videos on banking, finance and economics. Playlist is available in description and comment column. Watch 10 to 15 videos per day so that you have excellent knowledge in this field. Along with this, I have suggested you a very good source of current affairs. The link is available in description. Click the link, you will land up on an app. Download the app and take current year plan. Apply coupon code AA03 to have 10% off. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज आरबीआई ने अचानक एक स्टेप लिया. अब ये स्टेप अचानक क्यों लिया, इसके क्या कारण है, इसके क्या इम्प्लीकेशन है और इस स्टेप से क्या इंटरेस्ट रेट हो गए, ये हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में. पहली चीज़ ये है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस मीटिंग का नाम क्या है. इस मीटिंग का नाम रखा गया ऑफ साइकिल मीटिंग. नॉर्मली एमपीसी मीटिंग होती है 2-2 महीने के बाद. तो लास्ट मीटिंग हुई थी अप्रैल में, तो अगली मीटिंग कब ड्यू थी, जून में. तो जब कोई बीच में मीटिंग बुलाई जाती है तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही बुलाई जाती है. तो 2 और 4 मई को ये मीटिंग की गई. तो इसलिए इस मीटिंग की एक अलग महत्ता है कि ऐसा क्या हो गया कि हम 1 महीना वेट नहीं करना चाहते, जून में नहीं करना चाहते मीटिंग. तो इसमें आरबीआई ने एक्सप्लेन किया है कि जो इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है और उसके लिए इमीडिएट एक्शन लेना आवश्यक है. क्यों है? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेज़ी से अलार्मिंगली बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रही है पूरे विश्व के अंदर. और ये 3 से 4 डिकेड हाई, मीन्स 30 साल से लेकर 40 साल के बीच की हाईएस्ट इन्फ्लेशन पे पहुंच गई है. और जो ग्लोबल क्रूड की प्राइस है वो $100 प्रति बैरल पर स्थिर हो गई है, उसके आसपास ही चल रही है, यहाँ से भी बढ़ने की उम्मीद है. ईडेबल ऑयल की शॉर्टेज हो गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर. तो ये सारे फैक्टर इस बात को शो करते हैं कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है. तो यदि अभी स्टेप्स नहीं लिए जाते इन्फ्लेशन को रोकने के लिए तो वो खतरनाक हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए. तो आरबीआई के पास क्या स्टेप्स अवेलेबल है, एक लिक्विडिटी फ्रंट पे, एक प्राइसिंग फ्रंट पे. तो पहला काम उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के प्राइसिंग को चेंज कर दिया. रेपो रेट 0.40% बढ़ा के 4.40% कर दी है. एसडीएफ 4.15 और एमएसएफ बैंक रेट 4.65. तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट सारे बढ़ गए 0.4 से. तो जो बैंक्स हैं वो अपना जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हाउसिंग के ऊपर, कार पे या अदर सेक्टर्स में, वो भी बढ़ जाएंगे. अब क्योंकि वो बढ़ जाएंगे तो जिन कंपनीज ने या जिन इंडिविजुअल ने वो लोन लिए हुए हैं उनको इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गई. तो इससे जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट आएगा. प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे उनके, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ गई. और इसी कारण स्टॉक मार्केट इसको नेगेटिवली रिएक्ट करता है, क्योंकि काफ़ी सालों से भारत के अंदर हम इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन देख रहे थे, अब यह अचानक बढ़ गया. दूसरा इम्पैक्ट क्या है, बैंक्स के ऊपर. बैंक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है. तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस गिर जाती हैं. तो जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसकी प्राइस गिर गई, तो बैंकों को उसके लिए प्रोविज़न डालना पड़ेगा. तो वो ट्रेजरी लॉस में कन्वर्ट होता है. इसलिए बैंक्स को इसमें एक एडवर्स इम्पैक्ट आता है जब सडन चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है, मीन्स जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं. तो जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो ट्रेजरी में गेन मिलता है बैंक को. दूसरा जो आरबीआई ने स्टेप लिया है वो है सीआरआर. सीआरआर जो काफ़ी सालों से स्थिर थी 4% पे, उसको बढ़ा के 4.5% कर दिया. तो जब सीआरआर बढ़ गई तो अब और पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा बैंकों को, और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. तो वो पैसा बैंकों का ब्लॉक हो गया, तो वहाँ भी बैंक्स को एडवर्स इफेक्ट होगा. इसीलिए स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हुई है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक स्टांस ये आ गया कि आने वाले दिन कठिन दिन है. तो जो आरबीआई की कमेंट्री है
वो लोगों को डराने वाली है। तो मगर वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आरबीआई अप्रिशिएट नहीं करेगा जो प्रॉब्लम है और उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो इसलिए आरबीआई ने कहा है कि हम तैयार हैं, ऑल्दो हालात आने वाले टाइम में और एडवर्स होने की संभावना है, मगर उस चुनौती से हम लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ाई के लिए हर तरह के स्टेप्स, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, आरबीआई लेगी। अब इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की नॉलेज आपको देते हैं। 10 से 15 वीडियो यदि आप हर दिन देखते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ सकती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सारे वीडियोस फ्री हैं। इसी तरह करंट अफेयर के लिए एक अच्छा सोर्स मैंने आपको दिया है, उस सोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस प्लान 2000 करंट ईयर का प्लान ले लें, कूपन कोड AA03 लगाएंगे, 10% ऑफ आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।